आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना के वज़रा अराकीन मुक़न्नना किसानों के मसाइल की यकसुई, मुखालिफ किसान पॉलिसियों और मरकज़ी हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ धरना चौक इंदिरा पार्क पर एक रोज़ा धरना मुनज़्ज़म करेंगे। हरीश राव ने आज रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव के हमरा धरना चौक के इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल यानी जुमेरात के रोज़ मुनक़िद होने वाले धरने में TRS की ताकत के मुजाहरे के लिए ये धरना नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसानों से इजहार यगानगत के लिए ये धरना मुनक़िद हो रहा है। हरीश राव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को तमाम रियासतों के साथ यकसा रवैया अपनाना चाहिए, मगर मरकज़ी हुकूमत हर रियासत के साथ अलग अलग रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के 3 नए ज़रई क़वानीन की भी शदीद मज़म्मत की। ఈ మహాధర్నా కార్యక్రమంలో మా యొక్క నిరసన తెలపడం కోసం రేపు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర జరపాలని చెప్పి ప్రభుత్వం తలపెట్టింది. మరి ఇది అత్యంత శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో అన్ని అనుమతులు తీసుకొని ఇది మా యొక్క నిరసన తెప్పేటువంటి ఉద్దేశం, కేంద్రం మీద ఒత్తిడి పెంచే ఉద్దేశం, కేంద్రం కళ్ళు తెరవాలని, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మొండి వైఖరి విడనాడాలని చెప్పే ఉద్దేశంతోనే రైతుల పక్షాన చేపట్టినటువంటి ఈ ధర్నా దీని ఏర్పాట్లు గౌరవ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి దగ్గరుండి మరి పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి అత్యంత క్రమశిక్షణతో ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో ఈ నిరసన తెలిపేటువంటి కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. ఏదైనా ఇలా అందరూ గమనించాల్సింది ఒకటే, TRS పార్టీ రైతు పక్షపాతి, తెలంగాణ ప్రజల పక్షపాతి, తెలంగాణ ప్రజలే హైకమాండ్గా పనిచేసే పార్టీ. ఈ రాష్ట్రంలోని రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కనుక ఆ రైతుల పక్షాన కేంద్రం మీద ఒత్తిడి పెంచేటువంటి ప్రయత్నం. ఎందుకంటే ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలా ఏదో కొత్తగా వడ్లు కొనే కథ లేదు కదా. స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటిలో తొలినాళ్లలోనే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఈ ఆహార ధాన్యాల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత పెట్టినారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆహార ధాన్యాలు కొనాలి, నిల్వ చేయాలి దేశంలో. మరి ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా तेलंगाना में अहम अपोजिशन कांग्रेस ने कानून साज काउंसिल के TRS उम्मीदवार P वेंकटराम रेड्डी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत करते हुए अरकान असेंबली के कोटे के तहत उनकी नामजदगी मुस्तरद कर देने का मुतालबा किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कांग्रेस कायदीन ने जिले सिद्दीपेट के साबिक कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी के खिलाफ ये शिकायत की, जिन्होंने 2 दिन कबल ही IAS के ओहदे से मुस्तफ़ी होकर TRS में शमूलियत अख्तियार कर ली और हुक्मरान जमात ने उन्हें काउंसिल का उम्मीदवार बनाया। रिटर्निंग ऑफिसर को पेश करदा याददाश्त में कांग्रेस ने जोर दिया कि वेंकटराम रेड्डी ने अपने असासे जात की तफसीलात का इंकशाफ न करते हुए ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट 2013 के तहत भी उन्हें अपने असासों का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस कायदी ने शिकायत की कि वेंकटराम रेड्डी ने अपने सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, जिस पर अदालतों ने भी उनकी सरजनीश की। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और मरकजी तहकीकाती एजेंसियों के जरिए उनके खिलाफ जामे तहकीकात की जरूरत है। వాస్తవాలు ఉన్నాయా అవాస్తవాలు ఉన్నాయా, ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా ఉన్నాయా, వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే అవి లేవు. కాబట్టి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి ఉన్నతాది ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. అయినా కూడా చర్యలు తీసుకోలేదు. ఈరోజు ఉదయం 10:30 గంటలకు శాసనసభలో ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారి కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడికి వెళ్ళి వారికి ఫిర్యాదు చేయడమే కాకుండా
రాతపూర్వకమైన ఫిర్యాదు వివరాలతో కూడుకున్న ఫిర్యాదు రిటర్నింగ్ అధికారికి ఇచ్చి మీరు 11 గంటలకు ఏదైతే స్క్రూటినీ చేస్తున్నారో పరిశీలిస్తున్న అక్రమ సంపాదనతో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి తద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కొనదామని ఆలోచన చేసే చాలా జుగుప్సాకరమైనటువంటి ఒక ఐఏఎస్ అధికారి. ఎంత విచిత్రమైన పరిణామాలంటే నిన్న రాజీనామా చేస్తారు, రాజీనామా చేసిన 24 గంటలు కూడా కాకముందే రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆగమేఘాల మీద మీరు రిజిగ్నేషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. వారు ఎంత స్పీడ్ గా రిజిగ్నేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో. आज कांग्रेस पार्टी जो 6 MLCs के इलेक्शन होने वाले हैं उसके ऊपर असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर को और यहाँ पर चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर को कंप्लेंट करे हैं कि वेंकटराम रेड्डी जो कल तक सर्टिफिकेट कलेक्टर थे उनको 12 घंटे के अंदर उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया और उनको MLC का कैंडिडेट बनाया गया. कैंडिडेट बनाओ हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन रिजिग्नेशन देने से पहले उनके ऊपर राष्ट्रपति जी ने CBI में हाई कोर्ट में कई केसेस रहने के बावजूद उतना DOPT के इजाज़त के बगैर कैसा करे. और इलेक्शन कमीशन का काम था कि जैसा ही नॉमिनेशन का टाइम ख़त्म होते ही तमाम कैंडिडेटों का इसमें पब्लिक डोमेन में रखना नहीं रखे. पब्लिक डोमेन में रखने का मतलब है कि हर हिंदुस्तानी इसको एक उसके ऊपर हर हिंदुस्तानी को ये इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन के में जो लोग अफिडेविट दिए सही है नहीं है उसके ऊपर कंप्लेंट करने का. लेकिन 12:30 बजे तक जब अपलोड ही नहीं करे उनका अफिडेविट को तो कंप्लेंट करने से महरूम रखे. यानी जो हुकूक ने दी थी उसको आप पामाल कर दिए हैं. इसलिए ये इलेक्शन कमीशन का और रिटर्निंग ऑफिसर का दोनों की मिलीभगत से एक धांधली हो रही है. इसके ऊपर इंक्वायरी होना और ये इलेक्शन के ऊपर इंक्वायरी अगर नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे, ये उन तक कह दिया गया. आज कांग्रेस पार्टी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अहानत नामों से रिसालत में गुस्ताखी पर मुश्तमिल किताब तहरीर करने पर वसीम रजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की क़यादत में अकबरुद्दीन अवैसी, मजलिस अरकान मुकर्ररा ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार से नुमाइंदगी की. कमिश्नर पुलिस ने बैरिस्टर अवैसी को तयक़ुन दिया कि मलून वसीम रजवी के खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, मोहम्मद मौज़म खान, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, सैयद अमीनुल हसन जाफरी, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी. रुकन काउंसिल ने आज सुबह कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार से तफसीली मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत हवाले की. बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का साबिक़ सदर नशीन मुर्तिद वसीम रजवी ने हिंदी ज़बान में किताब तहरीर की है जिसमें झूठ, नाजिबा अल्फाज, बकवास और गंदगी के साथ अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई है जिसे कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता. वसीम रजवी ने जो वाहियात तहरीर की है उसमें उसने अनाप शनाप लिखकर मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश की है. वो मुस्लिम दुश्मन ताकतों का आलेकार बनकर ऐसी हरकतें कर रहा है. बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि उसकी गुस्ताखाना तहरीर ऐसी है कि उसे बयान भी नहीं किया जा सकता. वो शख्स अपने बयानात के ज़रिए मुस्लिम दुश्मनी पैदा करने और मुल्क में अमन व हम आहंगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि लोग सड़कों पर निकलकर गड़बड़ करें. सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमान पुरअमन तरीके से इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं. उन्होंने बताया कि मजलिस की जानिब से कमिश्नर पुलिस को मलून की किताब के चंद इख्तिसाबात भी हवाले किए गए हैं. वसीम रजवी और उसके साथियों के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया. अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की जिसमें मैं बहैसियत रुकन पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अरकान असम्बली, अरकान क़ानून साज कौंसिल, कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाजेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद एहतसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया है कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C और IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयख्खुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना, ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तइल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। Today we have met the Commissioner of Police, MIM party MLAs, MLCs and myself. We have represented to the Commissioner of Police, Hyderabad, Shri Anjani Kumar, that strong action should be taken against the ex-Shia Waqf Board UP chairman, who has written a book in which objectionable lies, falsehood has been written about our Prophet Muhammad, peace be upon him. And we have requested the Commissioner of Police, we have given him the excerpts of that book that, in which all these lies and falsehood has been written. And it clearly attracts IPC section of 153A, 153B, 295, 504 and 505 of IPC. The Commissioner of Police have requested us, has assured us that a criminal case will be booked against this person, and this book has been written to provoke the Muslims, to come out on streets, to provoke the सरकारी अस्पतालों में मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने पर अपनी एक मजबूत कोशिश के तौर पर वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत भर में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले सरकारी डॉक्टरों की फहरिस्त तैयार करें। अक्सर सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ ड्यूटी टाइम शेड्यूल पर अमल ना करने और अस्पताल छोड़ने और प्राइवेट क्लिनिक चलाने के लिए गैर हाजिर रहने पर बड़े पैमाने पर तनकीद की जा रही है। चंद ऐसे वाक़यात जहां डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अपने प्राइवेट क्लिनिक में आने का मशवरा देते हुए पाए जाते हैं, इस पर आवाम की तवज्जो हासिल हुई और सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात की सदाकत पर सवालिया निशान लग रहे हैं, जिससे अपोजिशन पार्टी भी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। वज़ीर सेहत ने मुबैना तौर पर ऐसे वाक़यात की इजाज़त ना देने और अपने क्लिनिक चलाने वाले सरकारी डॉक्टरों को अपने फ़राइज़ से मुहतात रहने की सख्त हिदायत जारी की। इस सिलसिले में सरकारी डॉक्टरों की फहरिस्त मांगी गई है जो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। सदर आइम्मा मसाजिद हैदराबाद हाफिज सुल्तान नक्शबंदी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुसलमानों के हमदर्द होने का सिर्फ ज़बानी तौर पर दावा करते हैं, मगर हकीकत में वो अमली तौर पर मुसलमानों के दुश्मन हैं। आज मीडिया से बात करते हुए सुल्तान नक्शबंदी ने कहा कि KCR ने रियासत के यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात पब्लिक सर्विस कमीशन में मुस्लिम नुमाइंदे की अदम शमूलियत के बाद अब कानून साज काउंसिल में मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हुए अपने जहनी तहफ़्फ़ुज़ात को जाहिर कर दिया। सेक्रेटरी मसाजिद के ताल्लुक से किसको देना चाहिए? कोई ज़रूरी है, 3-4 मुसलमान हैं अभी उसमें, जो है हमारे खुद सलीम साहब भी हो सकते हैं उसमें, और दूसरे हमारे फरीदुद्दीन साहब भी हो सकते हैं, और दीगर और भी है मुसलमान बहुत सारे हैं हैदराबाद में, क्यों नहीं हो सकते? ये पार्टी का दाखिली मामला है। नहीं, हम तो मुसलमानों का गुस्सा कहाँ पर, किस बात पर है? नहीं, मुसलमान मायूस है इसलिए कि मुस्लिम नुमाइंदगी होनी चाहिए, मुस्लिम नुमाइंदगी होनी चाहिए। TRS टिकट दी तो ही नहीं, ऐसे नहीं है, नहीं ना, आपका यानी मुसलमानों के ताल्लुक से जो आपका इशू है, यानी मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ और मुसलमानों का हमदर्द हूँ, तो थोड़ा उसका इजहार भी करना चाहिए, वो मकसद है हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि खाली सीट दे के मसीहा बन जाओ आप? नहीं, ऐसा नहीं, काम नहीं, काम तो चल रहा है ना। इससे पहले देखिए क्या बड़ी बात है जो अभी नहीं देने के, मतलब इससे पहले क्या खिदमत रहे आप लोगों की? किसके? MLC की नहीं, अब आप लोगों की क्या खिदमत रहा, इसी क्या वजह थी जो मुसलमानों को नहीं दिया, नज़रअंदाज किया गया? अच्छा, वो ये बात तो अपनी जगह एक अहम सवाल है, लेकिन हुकूमत कारकर्दगी को भी देखती है,
लेकिन फिलवक्त किसी भी मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं दी गई, इस पर हमारा ताज्जुब है। नहीं, ये देखिए सुल्तान साहब, एमएलसी के लिए नुमाइंदगी नहीं तो आपको अफसोस रहा, लेकिन 10 यूनिवर्सिटी में एक मास्टर्स ने दिया और हाँ, उस पर भी हमारा एक मिनट, उसके अलावा माइनॉरिटीज कमीशन के कानून के एक्ट के अंदर है एक मुसलमान को मेंबर बनाना, तो हुकूमत ने बना, लेकिन उस पर आप लोग कोई आवाज नहीं उठाए। आज सिर्फ एमएलसी के लिए आवाज उठाना मतलब क्या है? नहीं, एमएलसी नहीं, हमारी आवाज इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम बात करेंगे, वो हमारे सामने वो भी बात है, जरूर है आपने जो फरमाया है, लेकिन आज सिर्फ एमएलसी इलेक्शन इंशाअल्लाह जिस जब उठे उसी वक्त सवेरा होगा। आज से शुरू कीजिए, मुश्किल क्या है? इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो है ना, इसका भी, इसके ताल्लुक से भी हमारी एक तंजीम गौर कर रही है, और खुसूसन हैदराबाद के बड़ी बड़ी मुस्लिम जो तंजीमें हैं इस पर लेट क्यों उठते हैं? हाँ, ये बात लेट नहीं है, लेट ही है, हमेशा इलेक्शन का सिक्योरिटी की मसाजिद के ताल्लुक से। हैदराबाद के शहरियों में मेट्रो रेल में सफ़र में दिलचस्पी में इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में मेट्रो रेल के औकात में भी तब्दीली की गई है। पहले ये ट्रेन सुबह 7 बजे से चलाई जाती थी, ताहम अब ये ट्रेन सुबह 6 बजे से रात के 11:15 तक चलाई जा रही है, जिसके सबब रोज़ाना मेट्रो से सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। ट्रैफिक के बगैर और आलूदगी से पाक सफ़र पर मुसाफिरीन की बड़ी तादाद मेट्रो को तरजीह दे रही है। रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में भी होने वाली दुश्वारियों से बचने के लिए लोग मेट्रो को तरजीह दे रहे हैं। रोज़ाना मेट्रो इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 2,80,000 के करीब पहले थी, अब ये करीब 3 लाख तक दर्ज की जा रही है। मुलाजिमीन, ताजिर, IT कॉरिडोर में खिदमात अंजाम देने वाले अफराद की बड़ी तादाद मेट्रो का इस्तेमाल कर रही है। मुसाफिरीन ने कहा कि बाहर काम करने वाली खवातीन के लिए भी ये ट्रेनें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। लॉकडाउन के बाद शहर में मेट्रो ट्रेन से इस्तेफादा करने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और मेट्रो स्टेशनों पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रियासती हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में यादाद्री भुवनगिर ज़िले के भूदान पोचमपल्ली को अवार्ड हासिल हुआ है। दुनिया के बेहतरीन सयाहती गाँव के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसको तस्लीम किया। पोचमपल्ली गांव के क्राफ्ट्स, असलाहत और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। यह अवार्ड स्पेन के मैड्रिड में 2 दिसंबर को UNWTO जनरल असम्बली के 24वें सेशन के मौके पर दिया जाएगा। पोचमपल्ली गांव हैदराबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गांव रेशमी साड़ियों को बुनने के लिए मशहूर है। अनोखा तर्ज के एक्ट के जरिए इन रेशमी साड़ियों को बुनने का काम किया जाता है। श्रीनिवास गौड़ ने इस सिलसिले में अपने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की। इस 1 मिनट 25 सेकंड की वीडियो में मुरली नामी नौजवान कह रहा है कि गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ रहने वाले रेशम के ज़रिए हाथ से बनाई जाने वाली साड़ी के लिए अनोखी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनोखे डिज़ाइन और रेशम की साड़ियों के मखसूस प्रोडक्शन पोचमपल्ली पर इसको सिल्क सिटी का नाम दिया गया है। चूँकि इसके लिए इक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको इक्ट वर्ल्ड का नाम दिया गया है। सियाहत ने इसके गांव को मज़ीद मशहूर बना दिया है और उनकी पैदावार की तलब में भी इजाफा हो गया। साड़ियों की तलब में इजाफा हुआ है और इससे गांव को माशी तौर पर आगे बढ़ने में मदद मिली है। సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి ఈ దేశం కానీ ఈ రాష్ట్రంలో యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఎవరు కూడా దీన్ని గుర్తించాలి, పంపాలని ప్రయత్నం చేయలే. కానీ ఈరోజు ఇమీడియట్గా అన్ని దేశాలకు పంపితే, ఇలా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపితే ఇమీడియట్గా మేము భూదాన్ పోచంపల్లిని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సెలెక్ట్ చేసి 16/6/21 నాడు ప్రభుత్వాన్ని కొడితే 15/7/2021 వరకు మేము సమర్పించినాం. అంటే ఒక్క నెల వ్యవధిలోనే ఇమ్మీడియట్గా ఈ డోజర్ను తయారు చేసి టోటల్గా మేము పంపిన ఏకైక విలేజ్, మేము పంపింది ఒక్కటి పంపితే ప్రపంచానికి గుర్తింపు వచ్చింది, వరల్డ్ వైడ్గా గుర్తింపు వచ్చింది ప్రపంచానికి. అలాంటివి అరుదైనటువంటి ప్రాంతాలు తెలంగాణ గడ్డ మీద ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి, అభివృద్ధి కావడానికి ఈ రాష్ట్రంలో అనువైన ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. చార్మినార్ కావచ్చు, సమ్మక్క సారక్క కావచ్చు,
వెయ్యి స్తంభాల గుడి కావచ్చు, సోమశిల కావచ్చు. शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली में वाक़ जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी JNTU के वाइस चांसलर के चेंबर के मुहासरे की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने कोशिश की। उन्होंने PhD के दाखिलों में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने तुलबा कायदीन को रोक दिया। उन तुलबा ने हुकूमत के खिलाफ अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजी तुलबा के दरमियान बहस और तकरार भी हो गई। तुलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर एहतजाज किया। इन तुलबा ने पुलिस से कहा कि PhD के दाखिलों में धांधलियां हुई हैं। पुलिस ने उन एहतजाजी तुलबा को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। బీసీ గారికి ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉన్నదా? ఇంతమందిని కలవడానికి రిప్రజెంటేటర్ గా ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఆయన ఏసీలో కూర్చోడానికి వచ్చిండా, విద్యార్థుల సమస్యలు తీర్చడానికి వచ్చిండా? మీరు ఎందుకు అడ్డుకుంటారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీసీ గారిని రమ్మండి గేట్ ముందరికి, మేము పోతాం పైకి. ఏంది ఆయన ఇబ్బంది ఏంది? ఆయన ఎందుకు భయపడుతుండు? తప్పు చేసిండా? తెలుస్తాడు, తెలుసుకుందాం. ఎందుకు రావట్లేదు బయటకి? ఎలా లక్షలు లక్షలు మింగి हैदराबाद के मशहूर गांधी हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से नौजवान डॉक्टर की मौत हो गई। चाशुमे की सुबह अचानक पेश आए इस वाक़े ने अस्पताल के स्टाफ के साथ साथ उस डॉक्टर के साथियों को गमज़दा कर दिया। इस डॉक्टर की शिनाख्त 28 साल डॉक्टर पूर्णचंद्र के तौर पर की गई। उसने हाल ही में जनरल सर्जरी में सीनियर रेसिडेंसी की तकमील की थी। वो चाशुमे की सुबह अस्पताल की चौथी मंजिल पर ड्यूटी कर रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो गिर पड़ा। उसको अस्पताल के ही इमरजेंसी शोबे को मुंतकिल किया गया, जहां उसको बचाने की कोशिश की गई, ताहम तमाम कोशिशें रायगां साबित हुई। गांधी हॉस्पिटल और उस्मानिया हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स के मुताबिक पूर्णाचंद्रा ने मंगल की सुबह सीने में दर्द की शिकायत की थी। उसने कुछ गोलियां मिली और चाशुमे को वो ड्यूटी कर रहा था कि यह वाक़या पेश आया। जयपुर में खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत दर्ज करते हुए न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए थे। मार्टिन गुफ्टिल ने 70 और मार्क चैपमैन ने 63 रनों की पारी खेली। इंडिया के लिए R अश्विन और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट लिए। 165 रनों के टारगेट को रोहित एंड कंपनी ने 19.4 ओवर्स यानी 19 ओवर 4 बॉल में खेल में सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैच में मिली जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त बना ली। दूसरा मुकाबला 19 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। अब बात कोरोना की। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 35,921 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिनमें 148 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से जान चली गई। रियासत में अब भी 3,712 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन की सेहत से मुताल्लिक हैदराबाद के
एआईजी हॉस्पिटल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। डॉक्टरों ने बताया कि 88 साल गवर्नर विष्णु भूषण हरिचंदन को 17 नवंबर को दोपहर 1 बजे गच्चीबौली के एआईजी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है। डॉक्टर्स ने कहा कि 15 नवंबर को गवर्नर की कोविड रिपोर्ट मुस्बित आई थी। फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मालूम हुआ है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्व भूषण को खराबी सेहत की बिना पर खुसूसी परवाज के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। वो गच्चीबौली के एआईजी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने गवर्नर की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। पता चला कि गवर्नर की सेहत मुस्तहकम है। सिलसिला टाउन के मानिया डैम से चाशुंबे को राहत कार्य के काम में मसरूफ वर्कर्स ने छठे कम उम्र लड़के की लाश भी निकाली। 6 बच्चे पीर को डैम में नहाने के दौरान गर्क हो गए थे। पीर और मंगल को ही 5 बच्चों की लाशें निकाली गई थी और 16 साल सिंगम मनोज नामी लड़के की लाश की तलाश की जा रही थी। हैदराबाद से पहुंचने वाली नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक टीम को मंगल को रात 1:30 बजे तक मनोज की लाश दस्तयाब नहीं हुई थी। 13 और 16 की उम्र के ये लड़के चेक डैम पर नहाने के लिए गए थे। सितंबर में मूसलाधार बारिश की वजह से चेक डैम में शुगाफ पड़ गया है। ताहम इस चेक डैम में बच्चों की तवक्को से ज़्यादा पानी मौजूद था और ये तमाम लड़के तैराकी से नावाकिफ थे। सैबराबाद पुलिस ने एक नामवर बैंक के फर्जी कॉल सेंटर को नई दिल्ली में बेनकाब करते हुए साइबर क्राइम के इल्जाम में 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सैबराबाद पुलिस ने बताया कि ये टोली नई दिल्ली के उत्तम नगर और मध्य प्रदेश के उज्जैन से काम कर रही थी और वो सारिफीन को ये कहते हुए फ़ोन किया करती थी कि वो बैंक से बात कर रहे हैं। इस तरह उन्होंने आवाम को तकरीबन 3 करोड़ रुपए का धोखा दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि टोली सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 34 केसेस में मुलविस है। पुलिस ने एक शिकायत की बुनियाद पर इस टोली को बेनकाब किया जिसमें कहा गया था कि मुतासिरा शख्स को क्रेडिट कार्ड तो मौसूल हुआ लेकिन पिन नंबर नहीं मिला। धोखेबाजों ने खुद को बैंक के नुमाइंदे जाहिर करते हुए मुतासिरा शख्स को फ़ोन किया और पिन नंबर रवाना करने के लिए उससे पैन कार्ड की तफसीलात तलब की। मुतासिरा शख्स के मुताबिक उससे कहा गया कि ऐसे कोड मौसूल होगा। उसने ये कोड को शेयर किया जिसके साथ ही उसे मालूम हुआ कि उसके क्रेडिट कार्ड से 97,996 रुपये निकाल लिए गए। सैबराबाद पुलिस ने बताया कि धोखेबाजों को बैंकिंग शोबे का तजुर्बा है और उन्होंने कस्टमर्स की तफसीलात जमा कर ली, बिलखुसूस नाम, मोबाइल नंबर, तारीख़ पैदाइश और दूसरी तफसीलात जिनमें शामिल रहती हैं। नई दिल्ली के मोहन गार्डन और उत्तम नगर में कॉल सेंटर्स कायम करते हुए उस ऐसे क्रेडिट कार्ड होल्डर से रब्त किया जाता है जिन्हें नए कार्ड मौसूल होते हैं। पुलिस ने ऐसे धोखेबाजों से मोहतात रहने की लोगों से अपील की है। हैदराबाद के नाचारा में वाक़े ग्रीन्स कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स झुलसकर हलाक हो गया। आग के वाक़े के वक्त अपार्टमेंट में मौजूद अनिल नामी शख्स फंस गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने आग पर काबू पाया। अनिल को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहम अस्पताल मुंतकली के दौरान उसकी मौत हो गई। अनिल अपने अपार्टमेंट में इंजन ऑयल का कारोबार करता था। ये आग इत्तेफाकी तौर पर लगी है। एक बेटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसके नाजायज़ ताल्लुकात में रुकावट बनने वाले बूढ़े बाप का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या जगतियाल ज़िले के बेरपुर मंडल के ताड़ला धर्मम गांव में पेश आया। पुलिस डीएसपी ने 65 साल नरसिया के कत्ल में मुलविस उसकी 35 साल बेटी और उसके 43 साल आशिक को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के सामने पेश किया। कत्ल की यह वारदात 11 नवंबर को पेश आई थी। पुलिस ने मकामी लोगों की इत्तला पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमान की तफसीलात के लिए बेटी सत्वा से पूछगुछ की गई। बेटी के जवाब से अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए पुलिस ने उसे भी मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में शामिल किया। बादशाह बेटी सत्वा से पूछताछ की गई जिस पर उसने कबूल किया कि उसने आशिक गंगाधर के साथ मिलकर बाप का कत्ल कर दिया। करीमनगर के हुसैनीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने केनाल में कूदकर खुदकशी कर ली। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अशोकनगर से ताल्लुक़ रखने वाला 27 साल नौजवान मोहम्मद शफी की नाश आज करीमनगर शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई इनाडो ऑफिस के करीब LMD केनाल से बरामद हुई। नौजवान की नाश को केनाल से निकाल लिया गया। खुदकशी की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। ताहम बताया जाता है कि नौजवान चंद दिनों से जहनी दबाव में था। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। नौजवान बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मिल कर चुका था और इस साल MTech में दाखिले की कोशिश कर रहा था। इस सानही के बाद शहर के नौजवानों में गम की लहर दौड़ गई है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।